کا کلام مانگیے. میں درخواست کروں گا کہ ہر زبان کھلے اور خدا ان کا اقرار کرے, کیونکہ ہم جب اپنا گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو تب وہ ہمیں معاف کرتا ہے. عزیزو, اپنے دلوں کو ٹھیک پہنچائے کہ مسیح یسوع میرے لیے دنیا میں آیا اور اس نے میرے گناہ کے لیے صلیب پر قربانی دی ہے. وہ کہ وہ بے برا تھا, اس نے کوئی گناہ نہ کیا تھا. ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی ناکامیوں اور اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں. اپنے منہ کو کھولے. ہاللویا. خداوند کا کلام ہمارے درمیان کھلنے کو ہے. خداوند کا کلام جہاں پر پڑھا جاتا ہے اثر کرتا ہے. آواز ابھی نہیں آ رہی, آواز دے. کھولے مسیح کے آواز دے, مسیح کو آواز دے. اے خداوند میں تیرے پاس آتا ہوں, اے خداوند میں تیرے پاس آتی ہوں, مجھے پاک کر. کیونکہ خداوند کا کلام پاکروں کا سب جو ہمیں ملا ہے وہ سچا ہے. خداوند کا کلام کہتا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. اور میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا, یعنی روح حق, جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے. عزیزو, پاکرو, ہماری مدد کے لیے حقیقی مددگار موجود ہے. اپنے سارے گناہوں سے معافی چاہے اور خدا ان سے دعا کرے. خدا ان تیرا پاکرو مجھے پاک کر دے. تیرا لہو مانگتے ہیں. کا سارا سین, ساری سٹوری اپنے اوپر لے کہ خداوند میرے لیے مظلوم ہوا, خداوند نے میرے لیے اپنی جان دی ہے. ہاللویا. میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر سسٹر سے کہ وہ سامنے آئے اور دعا میں ہماری رہنمائی کریں. دعائیں بیٹھے پلیز. آج سب جو اس کلام کو سننے والے ہیں ہم اپنے دلوں کو تیار کریں گے. آج کے دن ہم پوری انوائرمنٹ جتنی بھی گلوبل وائرس ہے اس کے لیے بھی دعا کریں گے اور ہم خداوند سے یہ دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں تو بچا. آمین. ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ, دل کی گہرائیوں سے ہم تیرا شکر کرتے ہیں. تیری حضوری میں آئے ہیں خداوند خدا, اس لیے کہ آج پوری دنیا کے لیے اے خداوند خدا ہم ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں اس وائرس سے بچا لینا, رحم کرنا. خداوند ہم پر ترس کھانا یسوع مسیح. تیرے خادم کے لیے جو کلام دینے والے ہیں اے خداوند خدا آج وہ کلام سب کے لیے خداوند خدا وہ ایک بڑا سبق ہو. تیرا شکر کرتے ہیں اے خداوند کے خدا, تیرا کلام ہمارے بند اور کودے میں سے ہو کر گزر جائے اور ہمیں اے خداوند خدا گرے ہموں کو اٹھا کھڑا کرے, پیاسوں کو پانی پلائے, بھوکوں کو کھانا کھلا دے اور جو گرے ہیں ان کو اٹھا کھڑا کرے. کج دلوں کو مضبوط دے ہیں اور سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے نام میں. آمین. ہو ہم سب تیار ہیں خدا کے کلام کے لیے. ہاللویا, ہاللویا. آپ کی پرزور تالیوں میں میں دعوت دوں گا پاسٹر عمران مقبول صاحب کو. آپ کا کلام سچا اور زندہ ہے. کلام کی
اور اسی سبب سے خدا نے میرے دل پہ ڈالا کہ میں ان دنوں میں اس سیریز کو اسٹارٹ کر سکوں، اور اس سیریز کا نام ہے ٹو اسٹرینتھن یور انر مین، باطنی انسانیت کو زوراور کرنا سے جدا نہیں کر سکتی، اس لیے ہماری باطنی انسانیت وہ زوراور ہونا بہت ضروری ہے۔ اور لاسٹ ٹائم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ کس طور پر باطنی انسانیت جو ہے وہ زوراور ہو سکتی ہے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں وہ سنا میسج تو وہ ہمارے پیج دا پلر آف ٹروتھ اسمبلیز میں جا کر اس کو سن سکتا ہے، اور جب بھی وہ سنے گا تو وہ اس میسج کو جو میں آج سنانے جا رہا ہوں اس کو اور زیادہ طریقے کے ساتھ جو ہماری سیریز کا تھیم ہے افسیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 14 آیت، اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ آمین۔ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ اگر کوئی باطنی انسانیت میں زوراور نہیں ہے وہ شخص گناہ کرتا رہے گا، وہ شخص بدعتوں کا شکار ہوگا، اس کی سمت متعین نہیں ہوگی، اور وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر وہ گرتا پڑا رہے گا، گویا وہ ٹھوکریں کھاتا ہوگا، وہ بے اطمینانی کا شکار ہوگا، وہ خوف و ہراس میں مبتلا رہے گا، وہ فکر و تردد میں دبا رہے گا، وہ بے اعتقادی اور شک اور کم اعتقادی اور پھر بے ایمانی، ان سب کا اسے خطرہ ہر وقت لاحق رہے گا۔ لہذا باطنی انسانیت کا زوراور ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پھر میں لاسٹ میں بتا رہا تھا کہ کس طور پر پولس رسول اپنی باطنی انسانیت کے حوالے سے بیان کر رہا تھا کہ وہ کیسے مجبور اور بے کس ہے کہ نیکی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے بات نہیں پڑ رہی۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کی باطنی انسانیت مضبوط نہیں ہے وہ نیکی نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ نیکی کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جس کی باطنی انسانیت زوراور نہیں ہے وہ شخص گناہ کرتا رہے گا، اسے نیک کام بند نہیں پڑیں گے۔ اور میں نے بتایا کہ کس طور پر انسان کی عقل، جیسا کہ وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، اس کی عقل بھی جو ہے وہ اس قابل نہیں، کیونکہ وہ بھی جو بدن ہے، بدن میں جو شرارت بسی ہوئی ہے وہ اسے لڑ کر وہ بھی اسے تابع کر دیتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر خداوند نے اپنی شریعت، موسمی شریعت جسے ہم کہتے ہیں دی ہے، وہ بھی جسم کے سامنے کیا ہوگی؟ بے بس ہو گئی۔ تو غیر عقل کی شریعت کام آئی اور نہ ہی موسمی شریعت کام آئی، نہ دنیا کے ضوابط، نہ دنیا کے اور طرح کے لوگ اور ہر طرح کے مذاہب کسی طرح سے جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے کہ اس باطنی انسانیت سے نیکی کو، کثرت کی نیکی کو جو وہ انسانی ارادہ کرتا ہے وہ اس کو روئے نہ لا سکے۔ یہ صرف اور صرف خدا نے کیا ہے، اور اس نے کیا کیا ہے؟
अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को भेजा। इस सीजन जो डिटेल का पिछली दफा मैं बता चुका हूं, बताने का सिर्फ मकसद ये कि आप समझें कि कितना जरूरी है कि जो बातरी इंसानियत वो जोरावर होकर जो है वो गालिब आए और इन सब कामों को वो कर सके और इस दुनिया के अंदर रहकर हम अच्छे तरीके के साथ खुदा की इबादत भी कर सकें और इन तमाम ताकतों और तमाम चीजों का सामना भी कर सके जो इंसान को जो है वो जिसका सामना है। और आज मैं और एंगल में आपको बताऊंगा कि किस तौर पर हम अपनी बातरी इंसानियत को मजबूत कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी बातनी इंसानियत को जो है वो इस काबिल कर दिया कि वो इस काबिल हो जाए कि वो मजबूत हो जाए। क्योंकि जब तक कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत पर यकीन नहीं करता और अपने जिस्म को उसकी रगबतों और उसकी ख्वाहिशों समेत उसको वहां पर खींच नहीं देता, तब तक ये बातरी इंसानियत का जोरावर होना ये नामुमकिन है। और जब कोई शख्स यीशु मसीह की सलीबी मौत, उसके मरने, उसके दफन होने, उसके जीतने के ऊपर बिलीव कर देता, उसका यकीन कर देता है, तो ये प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाता है। उसकी रीजन क्योंकि फौरन होली स्पिरिट रूहुल कुदस जो है वो उस शख्स की जिंदगी के अंदर जो है वो आ बसता है। आमीन। और यही बात हमने पढ़ी है कि रूहुल कुदस क्या करे कि उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। तो गोया यीशु मसीह ने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया है और होली स्पिरिट वो क्या करता है, हमारे बातों को, हमारे दिल को, हमारे यह जो हमारे थॉट पैटर्न्स हैं जो है वो उसको इस काबिल करता है, इस कदर मजबूत करता है कि हम अपनी बातरी इंसानियत में जोरावर हो जाए। और फिर जब हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाहिर भी होती चली जाएगी तो ना हम घबराएंगे और ना हम परेशान होंगे और ना ही बेईमानी की हालत में जाएंगे। आमीन। और आज मैं बताना जा रहा हूं कि जब इंसान यीशु मसीह को कबूल करता है, उसकी सलीबी मौत, उसकी जीवने के ऊपर यकीन करता है, होली स्पिरिट उसकी जिंदगी में आ जाता है। और जब होली स्पिरिट उसकी जिंदगी में आ जाता है तो फिर जोरावर होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इसके लिए उसको जोरावर होने के लिए जो है हमें और बहुत सारी चीजों की जरूरत है। और उनमें से एक जो जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं वो ये है कुलुसियों का खत, उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत। कुलुसियों का खत, उसका 3 बाब, उसकी 10वीं आयत। और लिखा है, और नई इंसानियत को पहन लिया है जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। आमीन। क्या है? नई इंसानियत को पहन लिया है। वो क्या करती है? जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। गोया strengthen your inner man by knowledge. आमीन। तो गोया इसका मतलब यह है, मार्फत है जो क्या करती है, अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। नॉलेज और मार्फत जिसे हम कहते हैं, ये क्या करता है? मार्फत क्या करती है? ये इस प्रोसेस में इजाफा करती है। आमीन। गोया जब कोई शख्स नई इंसानियत पहनता है, जब कोई शख्स बातनी इंसानियत यानी उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में वो आता है तो उसको जो चीज दरकार है वो क्या है? मार्फत।
اس کو کیا درکار ہے؟ بولیے علم، نالج. آمین. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کیا کرتی ہے؟ وہ ہمارے انر مین کو مضبوط کرتی ہے اور اسے نیا بنانے میں مددگار ہے. آمین. اور اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں اپنے خالق کی صورت کو اختیار کرنا ہے تو اسے کیا ضرورت ہے؟ بولیے معرفت کی ضرورت ہے. اور یہ اگر رک جائے گا اگر کوئی شخص معرفت کی طرف نہیں آئے گا. اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی وقت میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے نئی انسانیت کو پہنا. لیکن نئی انسانیت کیا کرتی ہے؟ وہ معرفت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتی ہے؟ وہ معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی ہے. گریک میں یہ اس کے لیے پرفیکٹ نالج کا جو ہے وہ بات کی گئی ہے. آمین. یہ پرفیکٹ نالج. تو گویا ہمیں اگر اپنی باطنی انسانیت کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم خوف و حراس سے بچ جائیں، تاکہ ہم جو ہے کام اعتقادی، بے اعتقادی، بے ایمانی، شک و شبہات اور گناہ جس کے جو موت لے کر آتا ہے، حرام کاری، نشہ بازی، ناچ رنگ، حسد، بغض، لڑائی جھگڑے، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں اور ان کی مانند جو ہمیں غلطیوں کے خط کے اندر ملتا ہے. تو گویا اگر کسی شخص کے اندر معرفت حاصل کرنے کا عمل رک جائے گا تو اس کی باطنی انسانیت کیا ہو جائے گی؟ وہ مضبوط ہونے سے کے عمل میں وہ کیا ہوگی؟ رکاوٹ آ جائے گی اور وہ رک جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ مضبوط ہو تو اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ نئی انسانیت کا میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ آٹومیٹکلی یہ اس کے اندر آتا ہے کہ میں معرفت حاصل کروں اور اپنے خالق کی صورت پر بنتا چلا جاؤں. دنیا کے اندر بہت سارے علوم ہیں، علم ہے، نالج ہے. ادب دنیا کے اندر بھرا پڑا ہے، بڑی بڑی سائنسز دنیا کے اندر ہے، بڑے بڑے فلسفہ دنیا کے اندر ہے، بڑے بڑے تاریخ دنیا کے اندر پائی جاتی ہے. لوگ ریسرچ کرتے ہیں علم کے اوپر اور بھاگے پھرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سیٹسفائڈ کریں. اور ایک اور بات جو خدا نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، یہ اس کا میں کہوں گا کہ اس کا بھاری فضل ہے تاکہ وہ باطنی طور پر مضبوط ہو سکے اور اس کا متلاشی ہو سکے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ٹرو علم، پرفیکٹ علم کی طرف جو ہے وہ پہنچ سکے. اس لیے دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہیں، دنیا کے اندر بے شمار جو ہے وہ علوم پائے جاتے ہیں. وہ اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ خالق کی صورت پر بننا چاہتی ہے. یہی شک جو ہے یہ آدم اور ہوا کے اندر بھی ڈالا گیا تھا کہ یہ پھل کھاؤ تو تم کیا ہوگے؟ اس کی مانند ہو جاؤ گے. تو گویا یہ ایک جو ہے اپنے اندر اچمبا ہے زندگیوں کے اندر، یہ خدا نے ڈالا ہوا ہے. وائس کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے انسان کے اندر کیا کیا ہے؟ وہ ابدیت کو باج گزار کیا ہوا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ اٹرنیٹی کو، ابدیت کو کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ وہ سرچ کرے. اس لیے ہر ایک شخص متلاشی ہے اور وہ پھر اپنے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ تلاش کرتا ہے. اور کئی جو ہے جس کی تلاش نہ ہو پاتی ہے وہ ایتھیسٹ بن جاتا ہے، وہ سوشلسٹ بن جاتا ہے، پھر تحریہ بن
पहचान जाते हैं, ठीक है। वो जो है वो अपने जो है मज़ाहिब की तरफ जो है रुजू नहीं करते हैं, और कईयों ने अपने तरीके, अपने कायदे और ज़वाबित बना लिए, अपने अपने लॉ बना लिए कि हम किसी न किसी तरीके से वहां तक पहुंच जाएं और हम क्या खालिक की सूरत पर पहुंच जाएं। दरअसल सबब यही है, चाहे कोई भी इल्म क्यों नहीं हो, वो उसका रूट ये है कि वो चाहते ये हैं कि हम किसी ऐसी जगह के ऊपर पहुंच जाएं जो बड़ी जबरदस्त हो और हम जो है प्रोमिनेंट हो जाएं और जो है किसी जो है सुप्रीम हो जाएं। आमीन। और आपको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सुप्रीम अथॉरिटी है और वो हमारा खुदा है। हालेलुया। आमीन। और मार्फत हासिल करने के लिए, और आपको जो सिर्फ बाइबल ये वाहिद किताब है जो ठीक इंसानों की रहनुमाई करती है। और लास्ट में मैंने बताया भी कि उसने ठीक रहनुमाई की है कि जितने मर्जी आप सर्च कर लें, जितने मर्जी अलूम की तरफ चला जाए, चाहे कोई जो है वो ब्लैक मैजिक की तरफ चला जाए, चाहे वो व्हाइट मैजिक की तरफ चला जाए, चाहे जो है वो मज़ाहिब करते वो अपने इल्म को हासिल करे, वो उसकी किसी तरीके से मदद नहीं हो सकती है जब तक कोई शख्स जो है वो सलीम का इल्म जिसके पास नहीं है, वो आगे मूव ही नहीं कर सकता है। इवन दो हमारे मसीही भी उस वक्त तक आगे मूव नहीं कर सकते हैं जब तक वो कलवरी का नजारा ना कर ले या उसका विजिट ना कर ले। आमीन। और जो ही कोई शख्स वहां से होकर आता है, होली स्पिरिट उसे फिर मार्फत देना शुरू करता है, उसे इल्म देना शुरू करता है, ताकि क्या हो सके, वो खालिक की सूरत पर बनता चला जाए। आमीन। अमसाल की किताब और उसके 19वें बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली हो। ये भी अच्छा नहीं कि रूह क्या हो, इल्म से खाली रहे। इसका मतलब ये हुआ है कि ये कितना जरूरी है कि इंसान की जिंदगी के अंदर इल्म हो, और वो भी ट्रू इल्म, वो भी परफेक्ट नॉलेज। आमीन। मैं इल्म की बात नहीं कर रहा जो बिब्लिकल जो बेस है, जिसका जो है ताल्लुक परफेक्ट नॉलेज के साथ है। आमीन। और फिर जब आप अमसाल ही की किताब उसके 24वां बाब उसकी तीसरी और चौथी आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हिकमत से घर तामीर किया जाता है। हिकमत से और फहम से उसको क़याम होता है। फहम से क्या होता है, उसे क़याम होता है। और इल्म के वसीला से कोठरियां नफीस व लतीफ माल से मामूल की जाती हैं। आमीन। तो गोया आप ये देखिए कि दुनिया के चाहे घर हो वो कैसे तामीर होते हैं, हिकमत से। और अंडरस्टैंडिंग उन्हें क्या करती है, कायम रखती है, और इल्म के जरिए से उस घरों के अंदर नफीस और लतीफ माल आता है। तो सोचिए कि इस घर में, इस घर की क्या जरूरत है, ये हिकमत से बना गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अक्लमंद वो शख्स है जिसने अपना घर ठिकाने पर बनाया है। ये वो है जो मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। और फहम से उसको क्या होता है, क़याम होता है। और इल्म के वसीले से आप देखिए कि नॉलेज के जरिए से नफीस और लतीफ माल इकट्ठा किया जाता है। उस नफीस और लतीफ माल जो है से वो मामूल की जाती है। अगर किसी शख्स ने अपनी कोठरी को जो है वो नफीस और लतीफ माल से मामूल करना है, तो उसे क्या जरूरत है, उसको किस चीज की नीड है, उसे नॉलेज की जरूरत है। हालेलुया। उसे मार्फत की जरूरत है। देन ये घर कायम और दायम रहेगा, नहीं तो ये क्या होगा, ये बदबूदार होगा, इस पर जाले लगे होंगे और इसमें से स्मेल आती होगी, इसमें गुनाह होगा, इसमें हरामकारी, नशाबाजी, जो है वो हसद, फुकस, लड़ाई झगड़े, तफरके, जुदाइयां, बिदअतें, नाचरांग और इनकी मानद होगा। और इब्लीस वहां पर राज करेगा। वहां पर 7 बदरूहें आएंगी और उसका हाल पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाएगा। मेरे अजीज भाइयों,
हमें अपनी कोठरियों को इल्म के जरिए से नफीस लतीफ माल से मामूर करने की जरूरत है। और ये होली स्पिरिट है जिसके जरिए से हमारी बातरी इंसानियत जोरावर हो सकती है। आमीन। और फिर यूहन्ना की अंजील और 17 बाब 30 की आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने यह वो बड़ा खूबसूरत बयान दिया है और कहता है और हमेशा की जिंदगी ये है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। तो गोया इसका मतलब ये है कि जब तक कोई शख्स इनको नहीं जानता वो अपने अंदर या वो लाइफ का मुजाहरा नहीं कर सकता है। वो इसकी पहचान, इसका इल्म यह होना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो शख्स अपनी जिंदगी के अंदर मजबूत नहीं हो सकता है। मार्फत ये बहुत जरूरी है। और इसलिए बाइबल मुकद्दस में खुदा ने मूसा की मार्फत ये फरमाया था कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से क्या हुए? हलाक हुए। अदम मार्फत हलाकत की तरफ लेकर जाती है, लेकिन मार्फत जिंदगी बख्शती है। हालेलुया। इसलिए क्राइस्ट ने कहा है कि हमेशा की जिंदगी ये है। आमीन। अदम मार्फत इंसानों को पूरी तरह जो है वो मस्क कर देती है, उसे मुतासर कर देती है। ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है अदम मार्फत। और यही अदम मार्फत भी है तो दुनिया जो है वो हलाक हो गई। इसलिए या ट्रू इल्म का होना ये बहुत जरूरी है। अगर ट्रू इल्म हमारे पास नहीं है तो फिर हम मुश्किल में पड़ जाएंगे और हमारी बातरी इंसानियत मजबूत नहीं हो पाएगी और हम इसी तरह खौफ और हरास का शिकार रहेंगे। हम इसी तरह शक और शबाक का शिकार रहेंगे। इसी तरह हम गुनाह पर गुनाह करते रहेंगे और इसी तरह हम तकलीफ इब्लीस के हाथों जब उठाते रहेंगे और कभी भी किसी भी चीज का सामना ना कर पाएंगे। इसलिए अजीज भाइयों हमें जो है वो बड़ी संजीदगी को इख्तियार करना होगा और दुनिया के वो किसी तरीके से भी जो है वो इंसान को जो है सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे और अनसेटिस्फैक्शन जो है वो जिंदगी के अंदर पाई जाती है और ये जो है गैर मुतमईन स्पिरिट वो जिंदगी के अंदर है और वो कभी भी जो है मुतमईन नहीं हो पाता है। इसलिए वो मारा फिरता है और इसलिए उसे कोई चैन नहीं है। चैन कैसे आएगा जब उसके पास जो है वो मार्फत हो गई। और बाइबल ये साफ फरमाती है और नई इंसानियत को पहन लिया जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खाले की सिर्फ पर नहीं बनती जाती है। जब तक आपके पास ट्रू नॉलेज नहीं है, नफीस और लतीफ माल आप अपनी कोठरी में जमा नहीं कर सकते हैं और आपकी जिंदगी जो है वो बड़ी खतरनाक हाथ तक जा सकती है और आपकी जिंदगी जो है वो किसी भी तरह से दूसरे के लिए बाबरकत नहीं हो सकती है। इसलिए अगर बाबरकत बनना है तो फिर पहली बात नई इंसानियत हो, बाकी इंसानियत का प्रोसेस आपकी जिंदगी के अंदर स्टार्ट हो। आप स्पिरिचुअल तौर पर जो है इस हद में आए, इस जो है दायरे में आए ताकि क्या हो सके होली स्पिरिट आपकी जिंदगी के अंदर मार्फत का काम करना शुरू करे, आपकी जिंदगी के अंदर इल्म का काम करना शुरू करे, आपको ट्रू नॉलेज जो है वो देना शुरू करे। हालेलुया। और इस तौर पर आपकी जिंदगी के अंदर मोहब्बत, खुशी, मेहरबानी, नेकी, तहम्मुल ये बर्दाश्त ये सारी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर आना शुरू होंगी। अदरवाइज इन तमाम चीजों का आना नामुमकिन है। मैं कहूंगा नामुमकिन है, फिर कहूंगा नामुमकिन है। ये उसी वक्त आएंगे जब हमारी बातरी इंसान जोरावर होने के प्रोसेस को अपनी जिंदगी के अंदर ले लेती है और होली स्पिरिट इसके अंदर जो है आपका बेहद जो है जबरदस्त मददगार है। प्रेज द लॉर्ड। जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो हमारे लिए भेजा है, जिसने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। आमीन।
इसलिए कलुसियों के खाते उसके 30 बाब उसकी 16वीं आयत में पौलुस ने ये इसी बात का जोर दिया है। इसी चैप्टर जिसको हमने बेस बनाया है उसकी 16वीं आयत में इसीलिए वो यूं कहता है, क्या कहता है? मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से भरो। आमीन। मसीह के कलाम को क्या करो? ये आपको थोड़ा सा बसाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा नहीं, इससे थोड़े से काम नहीं चलेगा। और हम जो है वो बड़े फॉर्मल लाइफ बसर कर रहे हैं और इसी सबब से हम जो है वो एक हमारी जो रूहानी जिंदगी है वो एक्सप्लोर नहीं हो पाती है। हम जो है किसी को अपनी गवाही सुनाने से झिझकते हैं और अपनी लाइफ को जो है वो बयान नहीं कर पाते और चुप हो जाते हैं, इसलिए कि हम दबे हुए हैं, इसलिए कि हमारी बातरी इंसानियत जोरावर है। अफसोस होगा कि अगर जाहिर इंसानियत भी जाहिर होती जाए और हमारी बातरी इंसानियत भी कमजोर होती चली जाए। और ये कितना अच्छा हो कि हमारी जाहिरी इंसानियत तो जाहिर होती जाए और बातरी इंसानियत रोज रोज नहीं होती चली जाए और मजबूत होती चली जाए। आमीन। तो क्या चाहिए कि हमारी जो है वो बातनी इंसानियत तो जोरावर हो जाए। बेशक हमारी उम्र के जरिए से या किसी बीमारी के सबब से जो है वो जाहिरी इंसानियत जो है वो जाहिर होती जाए या किसी भी सबब से वो जाहिर होती जाए। अफसोस होगा कि अगर हमारी बातनी इंसानियत जो है वो डाउन से डाउन होती चली जाए। मैं आपको उभारना चाहता हूँ इस कलाम के जरिए से कि हम अपने आप को संजीदगी की तरफ लेकर आए, अपनी थॉट पैटर्न्स को ठीक करें। ये आप मालूम है कि जब हम इनर मैन की बात की जाती है तो इसको हम सोल भी कहते हैं। किसी तरह से मैं इसको स्पिरिचुअल हाथे में लेकर आ रहा हूँ इस सेंस में, और इस हाथा भी इसी तरह बनता है। इनर मैन सोल है हमारा माइंड, हमारे इमोशंस और हमारा हार्ट, ये सारा इनर मैन कहलाता है। हमारा माइंड, हमारे हार्ट और हमारे इमोशंस, और इब्लीस हमारे इमोशंस के साथ खेलता है। हमारे दिलों के अंदर जो है वह ऐसी चीजें डालता है जिससे हम खुदा से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे दिलों, हमारे दिमागों को इतना वो खराब कर देता है कि हम जो है वो अपने ईमान से हट करते हैं, उसकी बातों को कबूल कर जो है हलाकत के अंदर पड़ जाएं। लेकिन अगर हम अपने माइंड, अपने दिल और अपने इमोशंस को जो है ये खुदा होली स्पिरिट के ताबे कर दे और आप देखिएगा कि आप जो है मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। इसका एक स्टेप है कि आप महबूब की तरफ तवज्जो करें, आप जो है वो इल्म की तरफ तवज्जो करें, आप जो है वो नॉलेज की तरफ, वो भी परफेक्ट नॉलेज की तरफ जो है वो तवज्जो करें। और बाइबल ये बयान करती है मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से क्या करो, बसने दो। तो गोया आप अपने इनर मैन को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है कि दिलों में मसीह के कलाम को कसरत से बसने दो। हालेलुया। तो आप क्या कर रहे हैं? कितना आप इस बाइबल को पढ़ते हैं और कितना काम नजर आता है। मैं जो है वो चर्च के ग्रुप में जो है थोड़ा कोशिश करता हूँ कि डालूं ताकि जो है हमारी कलीसिया के लोग जो हैं वो इसके ऊपर काम करें। लेकिन जो है शायद लोगों को ये मुश्किल लगता है कि काम करना। मैं आपको फिर से बयान करता हूँ कि कलाम की तरफ तवज्जो कीजिए, इल्म की तरफ तवज्जो कीजिए, अंडरस्टैंडिंग की तरफ तवज्जो कीजिए। होली स्पिरिट आपकी मदद करेगा जब तक कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। आमीन। ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा उनके लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम्हें हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि हमें जो है उसकी मर्जी के पूरे इल्म से मामूर होने की जरूरत है। ये पौल की दुआ भी है क्योंकि उसको पता है कि अगर हमारी मार्ग को ठीक हो गई, अगर हमें ठीक मार्ग मिल गई तो हम खुदावंद की इबादत करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, उससे मोहब्बत कर पाएंगे। नहीं तो ये हमारी जिंदगी फॉर्मल होगी और फिर ये रियाकाराना जिंदगी हम बसर करने वाले होंगे।
Praise the Lord. यशायाह की किताब उसका 11वां बाब उसकी दूसरी आयत का बी हिस्सा है, जिसमें ये लिखा गया है कि होली स्पिरिट की बाबत ये कहा गया है कि वो मार्फत की रूह है। आमीन। लिखा है उसके ऊपर मार्फत की रूह ठहरेगी, खुदा के खौफ की रूह, खुदा के खौफ की रूह, खिट की रूह, मसलहत की रूह, और फिर उसमें से एक रूह का जिक्र किया गया है, मार्फत की रूह। हालेलुया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी बातनी इंसानियत जोरावर हो जाए तो उसे मार्फत के रूह की जरूरत है। आमीन। मार्फत के रूह के बगैर आप जो है मजबूत नहीं हो सकते हैं। मार्फत के रूह के बगैर आपकी जिंदगी जो है वो इस काबिल नहीं बनेगी कि आप अपने बातन के अंदर मजबूत हो सके, आप दिली तौर पर मजबूत हो सके। इसलिए हम बहुत सारे झंझटों का शिकार हो जाते हैं और एकदम से यह इब्लीस के हद चढ़ जाती हैं। क्यों? इसलिए कि हम बातनी तौर पर मजबूत नहीं हैं और होली स्पिरिट जो है उसको दावत दीजिए। आज आप होली स्पिरिट को जो मार्फत की रूह है, द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ नॉलेज है वो। आमीन। उस स्पिरिट ऑफ नॉलेज को अपने अंदर आने दीजिए। जब स्पिरिट ऑफ नॉलेज आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो जैसा कि लिखा है कि जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज हमें क्या खुदावंद से दुआ करने की जरूरत है। लॉर्ड मार्फत का प्रेज़ द लॉर्ड। इससे क्या होगा? हम जो है खुदावंद में मजबूत होते चले जाएंगे। आमीन। मैं आपको हकीकत बताता हूं, जब आप मार्फत की स्पिरिट के अंदर आएंगे तो फिर आपका बातन मजबूत होगा और हम वो चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर तजुर्बा कर पाएंगे जैसा कि लिखा है। जब आप जो है वो पहला ग्रंथियों उसका दूसरा बाब उसकी 9वीं आयत से 12वीं आयत तक पढ़ें, वहां पर आपको मिलेगा। और वहां पर लिखा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर, आप गौर से सुनिए, लेकिन हम पर किनको उन चीजों को जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या की है? तैयार कर दी। ठीक है। लेकिन हम पर खुदा ने उनको यानी इन चीजों को रूह के वसीले से जाहिर किया। आमीन। किनके वसीले से जाहिर किया? तो इसका मतलब यह है कि ये आत्म मार्फत है जिसके सबब से हम उस जगह तक नहीं पहुंच रहे हैं। उन चीजों को जो आंखों ने नहीं देखी है, उन चीजों को जो हमारे कानों ने नहीं सुनी है, उन चीजों को जो आदमी के दिल में नहीं आई हैं, उनको खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार रखा है। और मोहब्बत करने वाले क्या करें? वो क्या करें? वो होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ नॉलेज के जरिए से वो क्या करती है? वो हमारी जिंदगी के अंदर आती है। आमीन। क्या आपको इन बातों की समझ आ रही है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए पौलुस रसूल ने कहा, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। आमीन। जिसका मतलब ये हुआ है, हम परफेक्ट नॉलेज को ढूंढ रहे हैं, दुनिया भी परफेक्ट नॉलेज को ढूंढ रही है। वो कैसे परफेक्ट नॉलेज को ढूंढ सकती है या तलाश कर सकती है? इसलिए उनके पास जो है वो अब उनकी तलाश जो है वो जारी और सारी रहती है और वो एक दिन आकर जो है वो ट्रैक से उतर जाते हैं। और शुरू ही में मैं आपको बता चुका हूं कि जो बातें तो जो है वो मजबूत नहीं है, वो बिगड़ों का शिकार हो जाते हैं, वो उनकी सिमत मतंगे नहीं होती हैं, वो बैठ बनाने का शिकार होते हैं, वो खौफ हरास में मुब्तला होते हैं, वो फिक्र और तरदद में पड़े जाते हैं, वो गुनाह करते हैं और उनकी तलाश कभी भी खत्म नहीं होगी और कभी भी उस जगह तक नहीं
नहीं पहुंच पाएंगे, जो उन चीजों को नहीं देख पाएंगे जो उन्होंने कभी कानों नहीं सुनी, ना उनके दिल में आई है, ना उन्होंने जहाँ उन्हें देखी है। लिहाजा ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो देख पाएंगे, जो सुन सकेंगे, और जो दिल के अंदर जो है वो लेकर आएंगे, वो लोग जिनको रूह ने उन पर जाहिर किया है। हालेलुया। सो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ ट्रू नॉलेज की जरूरत है, हमें मार्फत की जरूरत है। ये मार्फत कहाँ से आती है, ये मार्फत का जरिया क्या है? पहली बात वो ये कि आप मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दें, मसीह की शरीयत को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए। आप ये इस बाइबल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, इसे पढ़ें, इसे सुनें, इस पर अमल करें, इसको दिल में उतारें और इसकी एक चीज के ऊपर जब मेडिटेट करें, ध्यान करें, और जब ये आपके दिलों में जहाँ बसेगा तो होली स्पिरिट अपनी आग से इसे हवा देगा। जब इसको हवा देगा या आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी आग बढ़ जाएगी जिससे आप या उन चीजों को जान पाएंगे कि जो आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के दिल में आई, वो उन चीजों का आप अपनी जिंदगी के अंदर तजर्बा कर पाएंगे। पौलुस को इन चीजों का तजर्बा था। वो कहता है कि खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है, क्योंकि इंसानों में से किसी इंसान की बातें जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह के। आमीन। तो फिर अपनी और लिखा है जो उसमें है, उसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता, मगर हमने न दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। आमीन। लिहाजा अजीज भाइयों, हमें मार्फत की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। क्यों मार्फत की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है? क्योंकि जब हम नई इंसानियत को पहन चुके होते हैं, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की जरूरत पर नई बनती जाती है। तो ये प्रोसेस जो है उस वक्त खत्म होगा जब यीशु मसीह आएगा, और फिर जब आएगा तो हम क्या करेंगे? हम उसकी मानंद होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब तक ये प्रोसेस बराबर जारी और सारी है। इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है? हमें किस पर तवज्जो देने की जरूरत है? और वो ये है कि हम मार्फत हासिल करें, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दें, और फिर आप ठीक आइडेंटिटी को तलाश कर पाएंगे। मैं यूं कहूंगा कि मसीहों के पास ये एक बेनिफिट है कि हम यीशु मसीह को जानकर के और उस रूह कुदस के वसीले से हम अब्दियत को हासिल कर सकते हैं। ये खुदा ने हर इंसान के अंदर ये अब्दियत को डाला हुआ है। अफसोस वो जो है जिगर जो है उनकी तलाश जारी है, और काश वो तलाश करते 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 वो गलगली के पहाड़ पर आ जाए, उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। हालेलुया। और वहां से क्या होगा? होली स्पिरिट उनको क्या करेगा? पकड़ेगा और उनको मार्फत देकर यह उनको नया करता चला जाएगा, और यूं वो उन चीजों को देख पाएंगे जो आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के दिलों में आए। आमीन। जरूर है कि हमारा बातन मजबूत हो, हम बातनी इंसानियत में जो आबद हो। कैसे हो सकती है? जब खुदा की मार्फत हमारी जिंदगी के अंदर होगी। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हो गए। अब मेरा नहीं ख्याल जब यीशु मसीह की सलीब मौजूद है, उसकी कब्र खाली कब्र मौजूद है, और होली स्पिरिट मौजूद है, और हम हलाक हो गए, और रूहुल कुदस हमें मार्फत देने के लिए तैयार है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो मसीह की बातें तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। लिहाजा आइए खुदा उनसे कहें, खुदा होली स्पिरिट तू मुझे अपनी मार्फत, खुदा आप सबको बचाए। अपने स्वरों को झुकाएं और हम खुदा उनका शुक्र करें। खुदा आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरे हुजूर में बड़ी आजिज़ी और इंकसारी के साथ झुकते हैं कि तू हमारा खुदावंद है, तू हमारा बादशाह है, और तेरा शुक्र की तारीफ हो। हम अपने गुनाहों में मुर्दा थे,
لیکن تو نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، صلیب پر ہمارے اقدام خدا گناہ آپ اٹھا لیے، ہمیں مخلصی، ہمیں نجات عطا کی، اور تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنے پاک روح کو ہماری زندگیوں کے اندر بھیجا، جس نے اقدام خدا ہمیں تیری باتوں سکھایا اور وہ ہمیں تیری مانند بنا رہا ہے۔ میں اس کے تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتا ہوں۔ خدا آسمانی باپ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، روح القدس کی آگ سے، اس کی قدرت اور اس کی قوت سے اقدام اپنے لوگوں کو معمول کر، تاکہ اقدام خدا وہ تیری مرضی کے پورے علم سے معمول ہو کر ان چیزوں کو جان جائیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دلوں میں آئی ہے۔ خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرا ہاتھ کثرت سے زندگیوں کے اوپر جنبش کرے۔ آج کی برکت کے لیے شکر کرتا ہوں۔ میں کلیسیا کے سارے خاندانوں کے لیے جو اپنے گھروں میں عبادت کر رہے ہیں، ان سب کے لیے میں تیری برکت خدا ان چاہتا ہوں، ان کی زندگیاں محفوظ رہی، ان کے بچے محفوظ رہی، ان کے بزرگ اقدام محفوظ رہی، اس وبا سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور خاص ان اقدام خدا ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے جو خود اس میں پھنس گئی ہیں، ان کی رہائی کو مانگتا ہوں، ان کے چھٹکارے کو مانگتا ہوں، ان پر رحم کرو، اور جو نرسز ڈاکٹرز اس کام میں لگے ہیں ان سب کو اقدام اپنی کورنگ دے۔ اقدام خدا ہمارے چرچ کی نرسز اقدام محفوظ رہی، ہمارے چرچ کے بھائی بہنیں محفوظ رہی۔ خدا اقدام ان کلیسیا میں کوئی کمزور اور بیمار ہے، خدا یسوع مسیح کے نام سے وہ شفا پائے۔ اقدام خدا بھائی طارق کی بہن مشن کے لیے میں شفا کو مانگتا ہوں، یسوع کے نام سے اقدام اپنی شفا کو حاصل کرے، وہ رہا ہو تیرے نام سے۔ اقدام خدا بھائی شہر کی مدر کے لیے تیری شفا مانگتا ہوں، میں بشرا کی والدہ کے لیے خدا تیری شفا مانگتا ہوں۔ اقدام خدا ہم سے کوئی کمزور اور بیمار نہ ہو، ہمیں اپنی مانند بنا کر چلا جائے، تو ہمیں نئی انسانی دی ہے، تاکہ ہم اقدام خدا تیری معرفت حاصل کر تیری صورت پر اقدام خدا بندے سے جائے۔ آج کی ساری برکت کی بخشش اس کلام کے وسیلے سے ہر ایک کو بڑی برکت ہے۔ خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ Thank you, Jesus. हालेलुया। खुदा का कलाम मुबस्सिर है, हमें अपनी बातनी इंसानियत को मजबूत करना है, और ये तभी मुमकिन है जब हम खुदा के कलाम में उसको पढ़ते और उस पर अमल करते हैं, तो पाक रूह जो है हमें मजबूत करता है, और मार्फत की बातें, मार्फत का कलाम जो है वो हम कर सकता है। आए खुदा की प्रशिश में गीत गाएंगे 363, और लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वही है वही बना था लानती देने को सलामती। खुदा के गीत गाते हुए हम अपने हदीये और नजराने खुदा के हजूर पेश करेंगे, और खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा ने हमें वबाओं, बीमारियों, परेशानियों और मुश्किलों से बचाया हुआ है, निकाला हुआ है, और वही हमारा इल्म है। Thank you.
जब तेरा हाथ हमारे हाथों में है, तुम्हारा हाथ तेरे साथ में है खुदावंदा। ऐ खुदावंद हम तेरी भेड़े हैं, हम तेरे चरगाह की भेड़े और तू जोर आमद कर रहा है खुदावंदा। तेरा शुक्र करते हैं आज की रूहानी रोटी के लिए खुदावंद, जो हमारे बदनों के लिए बहुत जरूरी है। आज खुदावंद तेरा शुक्र के लिए, तेरे खादम के लिए खुदावंदा, जिसने सूरमा के लिए खुदा, जिसको तूने अपने रूह के हक के साथ खुदा हमारे इस्तेमाल किया है खुदावंदा, ताकि हम इसमें खा पी के 30 का ताकि उनके 100 गुना ताकत हासिल करें। आज की जायजी के लिए कुछ चंदा के लिए खुदा जो तेरे दिव्य उठाया है खुदावंद, तो अपनी मुट्ठी को खोल, अपने आसमान को खोल, ताकि हमारे खत्ते भरे रहे खुदावंदा। कभी आटे और के आटा खतरा दे, कभी तेल और लुपी, कभी तेल खतरा खुदावंदा। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते, बाकी सारे वक्त में अपनी पनाह में अपने लहू का चीज इस्ताज कर के नाम से आमीन।